So let's list down the last types of ratios, the formula, and then we start the sums on that. Okay, give the heading efficiency ratios. Give the heading efficiency ratios. बढ़वाते नहीं, give the heading efficiency ratios. Now, efficiency ratios में there are 4 ratios. First लिखेंगे stock turnover ratio. First is stock turnover ratio. Second is working capital ratio. Third is debtor turnover ratio. And the last is creditor turnover ratio. Stock turnover ratio, working capital, debtor turnover and creditor turnover ratio. Total efficiency ratios, या तो इसका दूसरा नाम है activity ratios. This is efficiency ratio, इसका दूसरा नाम है activity ratios. तो उसमें टोटल 4 हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल, डेटर टर्नओवर एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो. बराबर. अब उसमें फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो. अब इसका आंसर अपना आता है इन टाइम्स. The stock turnover ratio, the answers what you get, it is in times. अब उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम COGS divide by average stock. COGS divide by average stock. Now you people know how to find COGS? Tell me the formula. How to find COGS? How to find the COGS? Opening stock plus purchase expense minus closing stock. That was one of the formula. Then one more. Sales minus gross profit. That's the second formula. Okay. Average stock यहाँ पर क्या है वो find out करने के लिए उसका formula लिखो. Average stock, that's equal to, average stock is equal to opening stock plus closing stock. Opening stock plus closing stock divided by 2. Opening stock plus closing stock divided by 2. उसमें नोट लिखो, in few cases for calculating average stock, information about opening stock will not be given. Information about opening stock will not be given. In such case, closing stock itself should be taken as, in such case closing stock itself should be taken as average stock. Closing stock itself should be taken as average stock. Okay.
अब ये स्टॉक ढूंढने का पर्पस क्या है, ये हमको बताता क्या है, जरा ये समझो। मान लो स्टॉक टर्नओवर का आंसर आता है 5 टाइम्स। व्हाट्स द आंसर ऑफ माय स्टॉक टर्नओवर? मतलब से फॉर एग्जांपल इफ आई एम कीपिंग अ स्टॉक ऑफ ₹2 lakh इन माय गोडाउन, ऑन एन एवरेज हाउ मच स्टॉक आई एम कीपिंग इन माय गोडाउन? 2 lakhs। वो सामान बिक गया, मैंने एक और बार मंगवाया, कितने का सामान? ऑन एन एवरेज 2 लाख का, वो भी बिक गया, फिर एक और बार मंगवाया। ऐसा कितनी बार हुआ? 5 टाइम्स। मतलब whatever the stock was there with me, it got sold off and I have to order again a new stock. तो ये स्टॉक टर्नओवर जितना ज्यादा टाइम्स है, इट इंडिकेट्स कि अपने बिजनेस में हम ज्यादा सामान बेच रहे हैं और वो अपने बिजनेस के लिए फेवरेबल है। But are you getting what's the purpose of finding the ratio? The stock turnover says stock था, बिक गया, दोबारा मंगाया, बिक गया, इस तरह से हम करते रहे। That happened for how many number of times? 5 times during the year. During the year. तो ये जितना ज्यादा है उतना अपने लिए अच्छा है। Sure? Second लिखो, working capital ratio. Second, working capital ratio. अब वर्किंग कैपिटल रेशियो में 2 फॉर्मूला है, बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन COGS. It's based on sales and based on COGS. तो बेटा बेस्ड ऑन सेल्स में फॉर्मूला क्या आएगा, लिखो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अगेन इसका भी आंसर आएगा टाइम्स में, एंड बेस्ड ऑन COGS अगर है तो COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल, दैट्स द फॉर्मूला। एंड अगेन इसका आंसर भी किस में आएगा? इट विल बी इन टाइम्स। द आंसर वुड बी इन times. Okay. Now what does this ratio says? Pay attention. I have made you mark this. I have made you write this working capital का फॉर्मूला लिखवाया है कि बाकी है? बहुत सारे जन जब बाहर थे तब मैंने लिखवाया था, फिर से लिख लो। चलो, सेल्स तो आता है ना ढूंढना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखो। वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स minus current liabilities. Current assets minus current liabilities. Current assets minus current liabilities. बेटा पक्का? पक्का? नाउ ये रेशियो हमको बता क्या रहा है? ये रेशियो हमको बता क्या रहा है कि हमको अगर हमारे गुड्स बेचने हैं तो हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। नाउ वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? कि द कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अचीव द सेल्स। इफ आई वांट टू अचीव अ सेल ऑफ 10 lakhs, तो उसके लिए मेरे को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो पता चलेगा मेरे को कौन से रेशियो से? वर्किंग कैपिटल रेशियो से। क्या पता चलेगा? How much amount of working capital is required to achieve the sales? Sure. Next लिखो, debtor turnover ratio. Next is debtor turnover ratio. Debtor turnover ratio. बेटा उसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स।
अब डेटर टर्नओवर रेशियो का आंसर भी आ रहा है इन टाइम्स। डेटर टर्नओवर रेशियो का भी आंसर आ रहा है किसमें? इन टाइम्स। गेटिंग इट? गेटिंग इट? अब क्रेडिट सेल्स तो विल फाइंड इट आउट। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे मिलेगा उसका फॉर्मूला लिखो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। ओके, एंड लिखा जाए ट्रेड रिसीवेबल्स विल इंक्लूड व्हाट? ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आएगा वो लिखो। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आएगा? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। अब बेटा वापस ये रेशियो हमको किसके बारे में बता रहा है? डेटर टर्नओवर रेशियो। मान लो इसका आंसर वापस आया 5 टाइम्स। सर बार बार 5 मत लो, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें 10 टाइम्स ले लेते हैं। कितना आ रहा है डेटर टर्नओवर? नाउ डेटर्स कौन है कि जिनको हम सामान किस पर बेच रहे हैं? क्रेडिट पे। से नाउ यू आर माय डेटर, आई सोल्ड यू गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, दैट हैपेंड वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 बार, 5 बार। ऐसा कितनी बार हुआ तुम्हारे साथ? 10 बार हुआ। मेरा कोई दूसरा डेटर है, उसके साथ भी ये घटना कितनी बार घटी? 10 बार। मतलब हम अपने डेटर्स को कितनी बार उधार पर सामान बेच रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर? 10 टाइम्स। तो अच्छी बात है खराब है? अच्छी बात है ना, ज्यादा सेल हो रहा है, उधार पर हो रहा है लेकिन सेल तो हो रहा है। और इसकी वजह से ही देखो, अगर हम क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं तो आई शुड ऑल्सो नो इंफॉर्मेशन अबाउट माई विच पीरियड्स? कलेक्शन पीरियड्स। अपने को पता चलना चाहिए कि उधार पर सामान बेचा है तो कितने टाइम में अपने को वो पैसा डेटर मेरे को वापस दे रहा है। तो आई हैव टू ऑल्सो फाइंड व्हाट? कलेक्शन पीरियड। एंड दैट कलेक्शन पीरियड कैन बी इन मंथ्स, it can be in weeks or it can be in days. So month का अगर है तो how many months in a year? So 12 divided by debtor turnover ratio. अगर weeks है तो how many weeks? 52 upon debtor turnover. and अगर days है तो 365 upon debtor turnover ratio. That will give me what? कलेक्शन पीरियड। कि भाई हमको कितनी देर में, अगर हम उधार पर सामान बेच भी रहे हैं किसी डेटर को, इफ इवन आई एम सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, इन हाउ मेनी डेज आई गेट माय पेमेंट? कलेक्शन। लिख लो, चलो लिख लेंगे। कलेक्शन पीरियड आइदर इट कैन बी इन मंथ्स, वीक्स और डेज। बेटा द लास्ट वन लिखो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। अगेन द आंसर विल बी इन टाइम्स। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, द आंसर विल बी इन टाइम्स। उसका फॉर्मूला लिखेंगे क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय
Credit purchase divided by average trade payables. Credit purchase divided by average trade payables. नाउ लिखो एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे मिलेगा? तुम लोग बड़ा फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा? ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइड बाय 2. ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइड बाय 2. नाउ टेल मी, ट्रेड पेएबल्स में कौन सी आइटम आएगी? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. ट्रेड पेएबल्स में आएगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. अब जरा बुद्धि चलाओ, ये किसके लिए हम ढूंढ रहे हैं? मान लो इसका अगर आंसर आया 4 टाइम्स, क्रेडिटर रेशियो का आंसर आ रहा है कितना? इट विल इंडिकेट कि हमने पूरे ईयर में 4 बार लोगों से उधार पर सामान बाय किया है. ने अगर हमने बाय किया है गुड्स तो उनको पेमेंट देना पड़ेगा, तो वहां पर लिखेंगे पेमेंट पीरियड. वी हैव टू फाइंड पेमेंट पीरियड. अब पेमेंट पीरियड किसमें आएगा? मंथ्स, वीक्स या तो डेज. द पेमेंट पीरियड विल बी इन मंथ्स, वीक्स और इट विल बी इन डेज. बेटा अगर मंथ के लिए ढूंढना है तो क्या आंसर है? 12 बाय क्रेडिटर्स रेशियो. वीक में है तो 52 अपॉन क्रेडिटर रेशियो, एंड डेज में है तो 365 अपॉन क्रेडिटर रेशियो. इसमें तो बंद करो ना. Sum number 15, we need to calculate the stock turnover ratio. We need to calculate the stock turnover ratio. Now we are given with sales, closing stock, GP rate. Now GP rate क्यों दिया है सर? होगा कुछ करने के लिए. Opening stock and purchases हमको दिया हुआ है. Okay. Sum number 15, stock turnover ratio. The answer will be in times. The answer will be in times. फॉर्मूला है मेरा क्या? एवरेज COGS. What's the COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. तो कहना से 2 चीजें ढूंढनी पड़ेंगी मेरे को. सो दोनों चीजें ढूंढ लेते हैं. चलो COGS फाइंड आउट करना पड़ेगा और एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा. नाउ COGS में देखो मेरे को यहां पर सेल्स और जीबी का रेट दिया है. बेटा वी आर गिवन विद व्हाट? सेल्स और जीबी का रेट अगर हमको दिया है तो सेल्स कितना है बेटा? सेल्स 30 lakhs. उसमें से लेस हम कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो कितना परसेंट है? 30%. तो वो 30% सेल का ही होएगा ना. सो 30 lakhs का 30% अगर हम करें सो 9 लाख. तो 21 lakh will be my COGS. 21 lakh will be my COGS. And how will I get my average stock? Opening stock कितना है? How much is my opening stock? 3,50,000. Closing stock कितना है? 2,50,000. Total 6 lakhs. So average कितना आएगा? 6 लाख डिवाइड by 2, 3 lakhs. So now put it in the formula. 21 lakhs divided by 3 lakhs. 21 lakh divided by 3 lakh. So the answer will you get is 7 times. The answer what you would get is 7 times.
बेटा सम नंबर 15 ओवर, चलो बेटा सम नंबर 16 करें। बेटा सम नंबर 16 करूं, वांचिए શું કહે છે? Again we need to calculate the stock turnover ratio. Information क्या क्या दी है? Opening stock, sales, purchase, closing stock, purchase and wages, ये 6 आइटम दी हुई है। तो क्या ना से एवरेज स्टॉक तुमको मिल जाएगा एकदम इजीली। क्या फॉर्मूला लगा के? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके। सीओजीएस कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस वेजेस माइनस गेट मी द आंसर हो नदी कर दो बोर्ड पर। चलो गेट मी द आंसर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। I don't know. But what's your COGS? 26 lakhs. COGS 26 lakh. Average stock 1 lakh 75. 1 lakh 75. 1 lakh 75. Okay. So that comes to 14.86. 14.86. बहुत बढ़िया। 14.86। बेटा 17th वाला स्टार्ट करें। बेटा 17th वाला स्टार्ट करें। Start reading. What we are supposed to calculate in sum number 17? Working capital turnover ratio. But what are we supposed to find? Working capital turnover ratio based on sales and again on COGS. दोनों के बेस पर अपने को ढूंढना है। अब जरा सम में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। COGS पहले से दे दिया जोरदार। नॉन करंट असेट, नॉन करंट लायबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, तो सारी इंफॉर्मेशन है बेटा अपने पास, मजे से सम हो जाएगा। सो वर्किंग कैपिटल जो अपने को ढूंढना है, नाउ बेस्ड ऑन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल અને પેલું COGS upon working capital. Now COGS तो directly given. What are we supposed to find? Working capital पहले ढूंढना पड़ेगा। तो जरा बेटा हाथ ऊपर। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या लगे? तो सर उधर नॉन करंट वाले क्यों दिए हैं? इग्नोर मारने के लिए। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि इन द सम 2-3 इंफॉर्मेशन दे विल जस्ट गिव अस टू कंफ्यूज, टू इग्नोर, and you should do that the way homework defaulters are doing it, ignoring me. But what's my current asset? 3 lakh, 5 lakh, and current liability कितनी है? 3 lakhs. Okay, so working capital है 2 लाख। तो बेटा COGS कितना है अपना? COGS 32। So 32 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 16 times
સમમાં સેલ્સ નથી આપ્યું, સેલ્સ નથી આપ્યું. ओह स्कॉलर बैच, या वेरी गुड. सेल्स मुझे कैसे मिलेगा? COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 32 लाख प्लस व्हाट्स माय ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख. So it's 40 lakhs. So it's 40 lakhs upon 2 lakhs, that comes to 20 times. It would be 20 times. सम नंबर 18 उठाते हैं. चलो 17 पता चला. सम नंबर 18 उठाते हैं. चलो start reading the sum. What are we supposed to find in that? What are we supposed to find in that? Debtor turnover ratio. But you need to tell me the formula. Debtor turnover. Credit sales upon average trade receivables. Okay. And then they have also said find out the collection period in days. What will be the answer if the collection period will be in weeks and months? तो हरको बोलो ना कि ત્રણેયમાં ગોતવાનું છે. अब देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या दी है? वी आर गिवन विद टोटल सेल्स, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बिल्लू, ओपनिंग क्रेडिटर, क्रेडिट सेल्स, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं. तो हमको इसमें से जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम ले लेंगे. बेटा फॉर्मूला लिख दो. पहले फॉर्मूला लिखो. बेटा फॉर्मूला लिखो. क्या आएगा? बेटा फॉर्मूला लिखो. क्या आएगा? डेटर टर्नओवर इज क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. Now just check it up. Are we given with credit sales directly? तो वो मेरे को ढूंढने का जरूरत नहीं है. वो मेरे को ढूंढने का जरूरत. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे मिलेंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2. अब बेटा मैंने तुमको बोला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या चीजें आएंगी? डेटर्स आएंगे, बिल्स रिसीवेबल आएंगे. और देखो दोनों दिए हैं. कितने हैं? 70,000 और 20,000. वो 70 कौन से हैं? डेटर અને 20 છે बिल्स रिसीवेबल. प्लस क्लोजिंग में कितना है? 50,000 और 6,000. 50 કોના છે? ક્રેડિટર્સ 90 અને 6,000 is for bills receivable. Divide by 2. So 90 plus 56 divide by 2. 1,46,000 divide by 2. 73,000. तो बेटा क्रेडिट सेल्स कितना है? 3,65,000 डिवाइड बाय 73. 5 times. But what do you mean by the word 5 times? We have sold goods to our debtor 5 times in a year. 5 बार उसको उधार पे सामान बेच रहे हैं. अब उधार पे बेच तो दिया, लेकिन अभी सबसे बड़ा टेंशन क्या?
कलेक्शन पीरियड कि भाई वो पैसे हमको देगा कि नहीं। सो डेफिनेटली हमको देखना है कलेक्शन पीरियड्स। बेटा अगर वो क्या है मंथ्स, सो व्हाट्स द फॉर्मूला 12 अपॉन डेटा टर्नओवर, सो 12 डिवाइड बाय 5, so it will be 2.4 months. Weeks 52 upon data turnover, 52 by 5, 10.4 weeks. And days 365 नहीं लेना है, सब में जरा ध्यान दो रे। 360 थोड़े 3-4 नेशनल हॉलीडे निकाल दिए, 3 अरे 2-3 और बात कर दिए तो 360 डेज ही लिए हैं ईयर में, अपॉन 5, मतलब 72 डेज में अपनी उगरणी डेटर से हो जाती है। हम उसको सामान बेचेंगे, देन इन 72 डेज he'll give me the amount, वापस सामान बेचेंगे, 72 डेज में पैसे आएंगे। हो जाएंगे, हम 52 ही लेंगे। वीक्स में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, डेज में ही हमको करना है, ठीक है। इधर अकाउंट्स के व्यू पॉइंट से देखो, कैलेंडर के व्यू पॉइंट से नहीं, ठीक है। But the last sum for today, creditor turnover, get me the answer, I am not doing it. Creditor turnover ratio, you need to get me the answer. It's very easy. फॉर्मूला क्या लगेगा? क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स। Beta, you want me to do it? Beta, you want me to do it? Beta, there is one problem. In the sum, there is one problem. They have not directly given credit purchase. They have not given me credit purchase. Can I say total purchase minus cash purchase कर दो? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज कर दो। टोटल परचेज माइनस कैश परचेज कर दो तो दैट विल गिव यू क्रेडिट परचेज। एंड देन इज देयर एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट एवरेज ट्रेड पेएबल्स? बेटा इज देयर एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट एवरेज ट्रेड पेएबल्स? But what's the answer final? Creditor 6 times. Creditor वाला 6 times है. And payment period 8.6. 60 days. 60 days. बेटा क्रेडिटर से बार बार सामान लो वो तो टेंशन नहीं, अच्छा है। अपने से कोई ज्यादा उधार लेके चला जाए वो थोड़ा तकलीफ है। अपने उधार पे सामान लेके आएंगे कोई टेंशन नहीं, आने दो।
बेटा हो द गयास, हो द गयास। बेटा लास्ट इलस्ट्रेशन कितने होमवर्क में करे? 23 तक इतना मेरे को याद आ रहा है। इलस्ट्रेशन 24 से 32, इलस्ट्रेशन 24 से 32, बस। That completes the chapter. That completes the chapter. We are meeting tomorrow. We'll start with a new chapter, cash flow statement. जोएल बंद कर दे।